ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੌਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸਦਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ UT ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIR ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरीके समझ पा रहे हो? देखिए हरदीप जी, जिस तरीके के कानून लेकर के आए हैं और आपने विपक्ष को भी सुना होगा, विपक्ष ने वो जो बिल है उसको फाड़ के फेंक दिया। आखिर क्या चीज है जो विपक्ष उसको स्वीकार करने के मूड में नहीं है, और पूरा परिदृश्य किस तरीके का बना हुआ है आज की तारीख में राजनीति को, वो सब चीजें समझने की जरूरत है। आपको याद होगा जब किसान के ऊपर जो पूर्व में मंत्री रहे, उन्होंने उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और उस मंत्री के लिए पूरा विरोध किसान रहे कि उसको हटाया जाए, उसके बेटे को सजा दी जाए, लेकिन आज चाहने की कोशिश होती है। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, उदाहरण है, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मय आनंद का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं जिनमें अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को पार्टी और सरकार बचाती रही लगातार। लेकिन आज एक ऐसा बिल लाया जाता है कि भाई उसमें मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है अगर वो 1 महीना जेल में रहते हैं। तो इसमें ये आपको सोचना पड़ेगा। इससे पहले के प्लेबैक में अगर आप जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा, और तो आप समझते हैं हमारे यहाँ जांच एजेंसियां किसी के अंडर काम करती है, किसी के भी ऊपर कोई भी आरोप लग जाते हैं। हमारे देश में ऐसी चीजें हरदीप जी के लोगों ने 10-10 साल की जेल काटी और बाद में चला कि ये तो दोषी थे ही नहीं। तो राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है चरित्र हनन। अगर किसी व्यक्ति हनन हो जाता है, उसके ऊपर आरोप लग के वो जेल चला जाता है, इमेज खराब हो जाती है। आप अगर का उदाहरण, जितेंद्र जैन बरी हो चुके हैं, लेकिन वो इतने लंबे समय तक जेल में रहे। क्या कोई आदमी जिम्मेदारी लेगा, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई जुडिशरी का जज, इस चीज की जिम्मेदारी उसको सजा मिलेगी कि भाई गए वो एक ऐसा आदमी जेल में कैसे रह सकता है? कल संजय सिंह भी बरी हो सकते हैं, तो संजय सिंह की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका चरित्र हनन जो हुआ, जो वो जेल में गए, जो उनकी इमेज खराब हुई, कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी कौन लेगा? सोनिया गांधी के ऊपर केस चल रहे हैं, अगर वो कल बरी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी की जिम्मेदारी कौन लेगा?
और अगर इस तरीके का बिल आ जाता है, संसद में पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है, तो आप ये देखिए, जिस व्यक्ति ने, मैं सत्यपाल मलिक जी के उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ, वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम गलती है, हमारी कमी की वजह से वहां पे आरडीएक्स आया और सेना के इतने जवान मारे गए। उन्होंने ये भी बताया कि जी। मुझे इतना रिश्वत देने की कोशिश की गई है और इसमें आरएसएस का फला व्यक्ति है और फला फला व्यक्ति मुझे कोशिश की है, लेकिन आज तक उनकी जांच नहीं हुई, उनको नहीं पकड़ा गया, उल्टे सत्तरी के खिलाफ जांच बैठा दी गई। तो अगर ये कानून बन जाता है तो आप समझ सकते हैं ईडीबीआई किसी को भी फंसा सकती है, किसी के भी ऊपर चार्जशीट दायर कर सकती है। पीएमएलए कोर्ट के माध्यम से भी आपने देखा होगा किसी को भी फंसाया जा सकता है और उसकी कई कई महीने तक जमानत नहीं होती है। तो ऐसे में तो बड़े बड़े पद दांव पर लग जाएंगे और इसकी हकीकत होगी क्या? आपने पूर्व में देखा होगा, राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, नवाब बने रहने के लिए किसी ने अंग्रेजों की गुलामी की, किसी ने मुगलों की गुलामी की, किसी ने अपनी बेटियां देकर के जान बचाई, अपनी रियासतें बचाई। तो उस तरीके का आप देख सकते हैं अगर हिंदुस्तान के अंदर ये बिल पास हो जाता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, उनको मैं ये देख रहा हूँ, ये उनके पर की तैयारी है। अगर आप ये मान के चलिए, जिस तरीके से हमारे देश की राजनीति करवट बदल रही है, अगर आने वाले समय में चीजें बदलती हैं और कांग्रेस से या कोई गठबंधन से प्रधानमंत्री बनता है, और ऐसे समय में चूंकि राष्ट्रपति का भी टाइम पूरा होने वाला है, चाहे मोदी जी राष्ट्रपति बने या मोदी जी का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने, तो वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में फंसा सकता है और हटा सकता है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, इसमें एक लाइन ये जोड़ दी गई कि भाई इस तरीके से 30 दिन रहने पर प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री को भी हटाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जिसके अंतर्गत हमारी सारी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी एजेंसियां हो, वो सब मुख्य प्रधानमंत्री के अंदर में काम करती हैं। इवन राष्ट्रपति तक को कौन बनाता है? द्रौपदी मुर्मू को क्यों बनाया? आप बताइए। हर जगह रैली में जाकर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने आदिवासी महिला को मुख्य राष्ट्रपति बनाया है। तो क्या वो महिला कभी भी मोदी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बनाएगा राष्ट्रपति को, वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? ਵੈਸੇ ये चीजें ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ कभी नहीं है, ਇੱਕ ये ਇੱਕ ਇੱਕ केवल ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹਲਕੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? बताऊं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो आपके दिमाग में थॉट आया है, ये थॉट, ये विचार हमारे सबके दिमाग में है कि मोदी जी कई लोगों को कॉपी करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ताकतवर इंसान अमेरिका का है। मोदी जी सोचते हैं कि रसिया का राष्ट्रपति कैसे ताकतवर हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति क्यों ताकतवर नहीं हो सकता? और जिस दिन मोदी जी राष्ट्रपति के पद पे पहुंच गए, तो आप तय मान के चलना, इस तरीके के नियम हो जाएंगे कि देश का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होगा, देश का राष्ट्रपति ही देश की दिशा और दशा तय करेगा, और इस तरीके के कहा दिए जाएंगे, राष्ट्रपति की पावर दिखा दी जाएगी। राष्ट्रपति की पावर आज भी है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी पावर यूज कर सकता। आपको याद होगा जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने थे, तो उन्होंने सबको दिखा दिया था। उससे पहले कोई नहीं जानता था चुनाव आयुक्त की ताकत कितनी होती है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था एक चुनाव आयुक्त क्या कर सकता है और कितनी बड़ी ताकत होती है। तो इसी तरीके से अगर मोदी जी राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाते हैं, तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक मूलचूल परिवर्तन होगा। इवन आप देखेंगे जिस तरीके से सद्दाम हुसैन का शासन रहा या गद्दाफी का शासन रहा, एक तरफा एक व्यक्ति हाँकने वाला पूरे देश को होगा।
जिस सरकार को चाहेगा हटा दिया जाएगा, जिस मुख्यमंत्री को चाहेगा जेल में डाल दिया जाएगा। और इस तरीके की चीजें, इस तरीके की मानसिकता है। क्योंकि अगर आप चीजों को ध्यान से नोटिस करोगे तो वो किसको कॉपी करते हैं, किसको देखते हैं, चाइना को वो अपना आइडियल मानते हैं। और उनके काम करने का तरीका देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई चाइना के सामान का हमें बहिष्कार करना है, चाहे हमारे छोटा व्यापारी हो, चाहे उसको नुकसान हो जाए, चाइना का सामान नहीं बेचना है। और दूसरी चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाइना के साथ डील करनी है कि भाई हमारा व्यापार शुरू करना है। तो आप चीजों को समझो, किस तरीके की चीजें देश के अंदर हो रही है। जनता को दिखाया कुछ जाता है, हकीकत कुछ और होती है। हाल ही में बीजेपी के सांसद ने कहा कि चाइना अतिक्रमण कर रहा है, और मोदी जी यहाँ पर कहते हैं कि ना कोई देश में घुसा है, नने वाला है, ना ऐसा कुछ है। तो इन चीजों को हमें देखना और समझना पड़ेगा। जो देश हमें कमजोर लगता है, जहां से हमारी राजनीति सुटेबल होती है, पाकिस्तान के खिलाफ हम खुल के बोल देते हैं, हमारी पॉलिटिकल जो पावर है वो खुल के बोल देती है, हमारी लीडरशिप के बोलते हैं, चाइना के खिलाफ कोई खुलकर नहीं बोलता है। तो ਸੰਦੀਪ ਜੀ डबल ਜਿਵੇਂ माइंड गेम हिंदुस्तान ਜਿਵੇਂ के अंदर से ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਲਊਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। देखिए, बिल्कुल हर चीज को पहले आपने देखा होगा परखा जाता है, तोला जाता है। तो चीजों को ये परखते तरीके से टेबल पे रख के उसका विरोध कितना होता है, जनता का मूड ये देखते हैं। और जनता को केवल इतना दिखाया जाएगा कि देखिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को जेल भेजने का कानून बना रहे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं और पदों पर बने रहते हैं। लेकिन ये लोग जो विपक्ष है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। लेकिन वही चीज है कि पीछे मानसिकता कुछ और है, काम कुछ और करना चाहते हैं। जिस तरीके से किसानों को ये बताया गया था कि ये जो 3 कानून आ जाएंगे तो किसानों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा, लेकिन किसानों ने उस चीज को, उसके पीछे की सोच को समझ लिया था कि कानून पास होने से पहले अडानी के कितने बड़े बड़े भंडार बन गए हैं। और जो आज सरकार के गोदाम है, जो एफसीआई के गोदाम आपने सुना होगा, जहां सरकार भंडारण करती है, सरकार हमारा अनाज खरीदती है, उस काम को जिस दिन अडानी करने लगेगा, हो सकता है 1-2 साल आपको ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन बाद में हालात वही होंगे। जैसे जियो का कुछ दिन तो आपने फ्री चला लिया डाटा, आज चलाना मुश्किल हो गया है। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ सरकार की जो इतनी बड़ी सोर्स थी बीएसएनएल को खो गया, आप सोचो। BSNL ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखिए, बिल्कुल उनकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन जिस तरीके से भगत सिंह ने कहा था कि अगर मैं फांसी चढ़ जाऊंगा तो हिंदुस्तान के घर घर से भगत सिंह निकलेगा, यकीन मानिए एक सत्य हमारे बीच से चले गए हैं। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो एक ऐसा जज्बा लोगों में पैदा करके गए हैं कि हमारे समाज के अंदर से बहुत सारे सत्यपाल मलिक निकलने वाले हैं, जो कि गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर उनकी श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं और सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी खुल आ रही है। एक ईमानदार जो नेता था, एक ईमानदारी की जो आवाज थी, जो किसानों की आवाज थी, जो भ्रष्टाचार करता रहा, जिसने खुलकर कहा मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे हैं, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, जिसके घर में, जिसके रिश्तेदारों के यहाँ ईडी और सीबीआई लगातार छापे मारती रही, लेकिन उस पर कहीं एक उंगली रखने के लिए, एक दाग लगाने के लिए सरकार को कुछ नहीं मिला। आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है और उसको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, जबकि वो कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, वो राज्यसभा से भी सांसद रहे, वो लोकसभा से भी सांसद रहे, वो 5 स्टेट्स के राज्यपाल रहे। तो आप समझ सकते हैं मानसिकता क्या है।
ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखिए, जो जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर को लेकर के कहीं न कहीं ये डबल माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाली बात थी। मैंने आपको पहले बताया, ये कहते कुछ और है, जनता को दिखाया कुछ और जाता है, उसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है। जी जी। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का मामला है, उसी तरीके से आदिवासियों से भी जुड़ा हुआ मामला है। आपको बताऊंगा, जंगल ये थे झारखंड के, छत्तीसगढ़ के जंगलों पे अभी आपको पता है कितने हजार बीघा जमीन दी गई है साहब को? 3,000 बीघा जमीन दी गई है झारखंड में जी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर में इन्हें लैंड चाहिए थी, वहां पे खनन का काम करने थे और बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट थे, और वो धारा 3 ही पॉसिबल हो सकता था, उसको टेरिटरी बनाने के बाद ही पॉसिबल हो सकता था। तो इनके अपने मकसद अलग तरीके के हैं, लोगों को दिखाया कुछ और जाता है, किसी को हिंदुत्व की, किसी को पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग चरस चटाई जाती है। जो जिसका टेस्ट है वो उतना ले सकता है, लेकिन उनकी हकीकत है। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਟੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। देखिए, पावर को सेंट्रलाइज करने का एक तरीका है, उसमें एक भी है इसके पीछे की कि आपके ऊपर ब्लेम ना आए, कोई ये ना कहे कि भाई ये गृह मंत्री ने हटा दिया या ये प्रधानमंत्री ने हटा दिया, उस चीज का ध्यान हटाना है। अब आपकी समझ में आता है कि भाई देश का उपराष्ट्रपति हटाया गया, हर किसी की आप समझ सकते हैं, सत्यपाल मलिक को फंसाया गया, हर व्यक्ति की उंगली की तरफ उठी, आप समझ सकते हैं। एक प्रवीण तोगड़िया इनके हिंदू हृदय सम्राट होते थे, एक समय पे देश मुस्लिम की आग लगाने का काम करते थे, उनको साइड कर दिया गया, किसने किया आप समझ सकते हैं। संजय भाई जोशी, जो कभी आडवाणी से जिसने इस्तीफा मांग लिया था, बीजेपी के बड़े नेता थे, उनको खुड्डा लाइन कर दिया गया, खुड्डा लाइन हम लोग बोलते हैं कि साइड कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं अब एक व्यक्ति की तरफ उंगली उठती है, अभी एक व्यक्ति की तरफ उंगली उठती है कि भाई अनिल मसीह जिसने चंडीगढ़ का चुनाव में भ्रष्टाचार कर दिया, वो जेल में क्यों नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अभी ईवीएम पर उंगली उठती है। आपने देखा पानीपत में एक चुनाव हुआ था 2022 में, जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता था उसको अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो वापस पद मिला है, और जो जीता हुआ गलत है उसको हटाया गया है। तो इसका मतलब हर जगह गड़बड़ है, लेकिन अब ध्यान साहब को अपनी तरफ से हटाना है। उसमें क्या चीजें आएंगी आगे कि भाई ईडी ने ये चीज इसके खिलाफ गलत पाई, ये जेल में गया और इसलिए कोर्ट के माध्यम से ये हट गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो हमें अपने ऊपर टैग हटाना है और काम सारा हमारे तरीके से होना है। इवन अगर कुछ और दिन ऐसे ही चलता रहा, आप देखेंगे कि जुडिशरी है हमारी, जुडिशरी के अंदर भी वो लोग बैठाए जाएंगे जहां से आपका आखिरी जो विश्वास होता है वो किस जगह होता है कि भाई मुझे कोर्ट से तो फैसला मिल ही जाएगा, वहां तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की प्रवक्ता रही, उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, और अभी एक जज जो पहले बीजेपी के नेता रहे हैं, आपने देखा होगा फोटो भी वायरल हो रहा है उनके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ खड़े, उन्होंने राहुल गांधी पर भी एक टिप्पणी की है। तो आप समझ सकते हैं वो लैंग्वेज, वो सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है और चारों तरफ से लोगों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जी संदीप जी, और मैं आपको बता दूं, अगर हम प्रजातंत्र की बात करें
प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र में ये होता है, आपने बादल साहब की सरकार पंजाब में देखी, जी। आपने कांग्रेस की सरकार पंजाब में देखी, आज आप हमारी सरकार कांग्रेस देख रहे हैं पंजाब के अंदर, और हो सकता है 5 साल बाद फिर किसी और की आप देखें। लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंट को अपने हैंडल करने लगते हैं, जहाँ चीजों पर आपका कब्जा हो जाता है, तो फिर आप चाहे वोटिंग करा लीजिए ना, आप अनिल मसीह वाले मामले में वोटिंग का बताइए क्या रोल रह गया, वोटिंग जी, कराने की जरूरत थी क्या? मैं तो या जो इस तो भी अगे पानीपत में आपने चौधरी साहब देखा इस तो ईवीएम में वोट पड़ा, उसका कोई रोल रह गया मैं क्या? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस की है कि जहां सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए, उनसे हलफनामा मांग लिया जाता है। लेकिन वही चीजें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुराग ठाकुर करता है और वो 5 जगह के उदाहरण भी देता है कि यहाँ यहाँ गड़बड़े हुई हैं, उनसे कुछ नहीं मांगा जाता। और अगर उनसे कुछ हलफ मांग लिया जाता तो आप यकीन मानिए, जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया, शायद उसी रात जो ज्ञानेश कुमार का भी इस्तीफा हो जाता और उसको बीमार बता दिया जाता। तो सरकार हल नहीं करना है, और इन्हीं बातों से पता चलता है कि किस तरीके से चीजों पर कब्जा किया गया है, किस तरीके से अपने लोग बैठाए गए हैं। और अगर आप उन लोगों की लैंग्वेज भी नोटिस करेंगे तो आपको उनकी लैंग्वेज मिलती जुलती मिलेगी। उनकी जो चीजें लिखता है, जो व्यक्ति लिख रहा है, वही पीएमओ के लिए लिख रहा है, वही होम मिनिस्ट्री के लिए लिख रहा है, वो चुनाव आयोग के लिए लिख रहा है, वो तो केवल पढ़ने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, सदन के अंदर आपने भी 100 दिन बहस हो रही थी, सफाई दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पे, जी। राजनाथ सिंह जी जैसा व्यक्ति जो कभी मैंने पढ़कर बोलते हुए नहीं देखा, वो एक पर्चा पढ़ के ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा खुशी की बात मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। तो ये कितने दुख की बात थी, आप सोचिए क्या दिखाना चाहते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਕਟੇਟਰशिप होगी देश ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, डिक्टेटरशिप की जहां तक बात आती है, वो मानसिकता तो है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो ये है कि विपक्ष आवाज उठा रहा है और अब लोगों के समझ में आने लगी है बात। क्योंकि किसी के भी ऊपर एक टाइम जोश चढ़ जाता है, किसी भी चीज का आपको नशा हो सकता है। आपको क्रिकेट का शौक बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको हॉकी का बहुत सकता है, आपको रेसलिंग का बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको राजनीति का बहुत ज्यादा हो सकता है, आपका विश्वास राम में बहुत ज्यादा हुआ था एक टाइम पे, राम रहीम में बहुत ज्यादा हुआ लोगों का विश्वास एक टाइम में, रामपाल में बहुत ज्यादा हुआ लोगों का विश्वास एक टाइम में, अभी जो ये बागेश्वर बाबा बने घूमते हैं, इनमें भी लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन जब लोगों के सर पे पड़ती है वक्त, मुझे पता चल जाता है भाई किसी के पास कुछ नहीं है, ये सब ड्रामे हैं। अब मैं आपको कहने लगूं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, तो हो सकता है 2-4 पागल मेरे चक्कर में फंस जाए, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कहेगा अच्छा मैं ही मिला हूँ क्या बेवकूफ बनाने को। तो ये चीजें लोगों के सामने, ये देखिए, अगर आप पाकिस्तान में बम गिराने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि रडार आपको के मौसम में कैच नहीं करेगा या आपकी खबर नहीं देगा। वो हर मौसम में, वो रात को अंधेरे में भी काम करेगा। अब मैं लगूं मुझे रात को नहीं दिख रहा तो रडार को भी नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। या मैं सोचने लगूं कि भाई गैस की, मैं अपने गांव की गली की नली में पाइप डाल के उससे चाय बना लूंगा। देखिए, चाय बनाने के लिए आपको एलपीजी नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं चाय बनने वाली है आपकी कहीं भी। प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने फैक्टर्स में पढ़ा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको भी गलत एक्सप्लेन करने लगे तो मैं समझता हूं बस भगवान ही मालिक है। जी ठीक है चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, तमाम ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਭਾਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ,
ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।